suggestion is like this type. Visionary India is a non-profit making, non-government voluntary association and working for the adolescent strengthening. Visionary India is a platform which provides the youth to advance their perspectives to bring positive change to the society in order to make it a superior spot for living. We are a non-partisan think tank whose vision is to build a precise direction and deliberately be a cure to control youth thuggery in nature. This think tank advances quality research and inside out investigations and is a stage for dialogues and policy making. We imagine an existence where every individual can lead an existence of decision making in personal, economic, cultural, and political spheres. Visionary India's main motive is to appear as a free organization of people to recite a solitary reason to bring advancement that will liberate the youth. We put stock in United India and Committed India, a dream where there would be dynamic youth commitment and positive cooperation, working in a joint effort with pioneers to free the young people. As we have today Advocate Sultan Khan, who is a practicing lawyer at Jharkhand High Court and Civil Court and Labor Court. Sir has also pursued masters in business, finance, and artificial intelligence. Sir has cracked the bar exam in the first attempt. Sir has a great presence in the social media, sharing the legal knowledge with having the Twitter followers of 3.5k and Facebook followers about 2.1k. Sir has delivered many public speeches and also many webinars, like misuse of sedition laws, legal journalism, job scam, and bar exam preparation. Now, I would like to Sir to start the session. Thank you, Vidhi. Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Today's webinar is on the legal drafting. Rachit, Vidhi, I have sent the notes there. Screen pe le aiyega. The Visionary India team, sir, will be sharing the shortly. वो आ गया क्या screen? Sir, by the time you can start with the introduction. वो notes मैंने उसमें किया हुआ लिखा हुआ उसमें. वो क्या हो रहा है उसको नहीं आ रहा क्या उसमें? एक सेकंड. रचित को तो भेज दिया गया. Okay, let's start. हो गया आ रहा है क्या स्क्रीन में? अब जो बना रहे यार रचित There are notes. Not showing. So just 1 minute, we are just doing it. By the time you can start with the introduction. Okay. ड्राफ्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लीगल फील्ड में. इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती है कि लीगल ड्राफ्ट कैसे किया जाए, कैसे कैसे उसके प्रोविजंस को पढ़ा जाए, किस बात को लिखा जाए, किस बात को नहीं लिखा जाए. ये बहुत सारी परेशानियां होती हैं लोगों को जब न्यू लॉयर्स हम लोग ज्वाइन करते हैं. तो लीगल ड्राफ्टिंग एक्चुअली क्या है? व्हाट इज लीगल ड्राफ्टिंग? एक इंट्रोडक्शन ये है कि इसका सिंपल डेफिनेशन ये कहा जा सकता है, एनीथिंग यू राइट विद द लीगल सेंस इज कॉल्ड लीगल ड्राफ्टिंग. अगर आप कुछ बात लिख रहे हैं और उसमें लीगल सेंस है, आप लीगल बाइंडिंग करना चाहते हैं, तो वो लीगल ड्राफ्टिंग है. चाहे आप किसी भी पीस ऑफ पेपर पे लिखें, दैट इज कॉल्ड लीगल ड्राफ्टिंग. लीगल ड्राफ्टिंग का यूज कहाँ पे होता है? एरियाज ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग. सबसे पहला कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ए और बी के बीच में,
तो एग्रीमेंट बनता है, कोई प्रॉमिस ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने पढ़ा है लॉ कॉलेज में कि जब भी कोई बात लिखी जाती है तो कोई एक वादा करने वाला होता है, कोई एक वादा निभाने वाला होता है। तो उस बात को लिखने के लिए आ रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. ओके, पेज सेकंड पेज। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि बताया गया कि व्हाट इज लीगल ड्राफ्टिंग, एनीथिंग यू राइट विद द लीगल सेंस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। आप किसी भी बात को लिखिएगा, अगर आप लीगल बाइंडिंग करना चाहते हैं तो वो लीगल ड्राफ्टिंग होगी। एरियाज ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये एग्रीमेंट में होता है, रेवेन्यू कोर्ट, हम लोग जब रेवेन्यू कोर्ट में कोई पिटिशन डालते हैं तो वहां पे लीगल ड्राफ्टिंग का सबसे ज्यादा यूज है। सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, जहां पे भी मनी ट्रांजैक्शन है, अगर उस ट्रांजैक्शन को हम लोग लिख रहे हैं तो लीगल ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। नोटिस टू पार्टी, जब हम लोग किसी पार्टी को नोटिस देते हैं किसी भी बात के लिए, मतलब जिसमें लीगल बाइंडिंग हो, तो वो भी लीगल ड्राफ्टिंग के एरियाज में आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल ड्राफ्टिंग का क्या है, क्यों हम लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं, व्हाई। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। इंसान क्या है, इंसान भूल जाता है। जब कोई आदमी कोई बात होता है और वो लॉन्ग टर्म के बाद आप उस बात को याद करिएगा तो भूल जाते हैं। तो लीगल ड्राफ्टिंग क्या है कि अगर लिखा हुआ है तो उसके बाद को मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। दूसरी बात यह है कि एक एविडेंस के तौर पे काम आता है। कोई इंसान किसी बात को वादा करके, अगर वो लिखा हुआ है या कुछ बात उसने कुछ लिखी है, लीगल ड्राफ्टिंग मतलब लीगल बाइंडिंग है वो, तो कल होके वो पलट नहीं सकता अपनी बात से। तो इसलिए लीगल बाइंडिंग टू बोथ द पार्टीज होती है। जो भी दो पार्टीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो लीगल बाइंडिंग अगर है उसमें, तो वो लोग पलट नहीं सकते अपने बात से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बहुत काम आता है। अगर आपके लीगल ड्राफ्टिंग है, पहले से आपका ड्राफ्टिंग किया हुआ है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपका बहुत ज्यादा यूज होगा उसका। ये एक 3 पॉइंट है, ये प्रिंसिपल्स है एस्टॉपल, वेवर, एक्विसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लीगल ड्राफ्टर को पढ़ने के लिए। अगर आप एक अच्छा लीगल ड्राफ्टर बनना चाहते हैं तो ये 3 प्रिंसिपल जो है, एस्टॉपल, वेवर और एक्विसेंस, ये तीनों पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत डीप है और इसको आपको मिलेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, आपको अच्छा से मिल जाएगा। आप उसमें से पढ़ सकते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है लीगल ड्राफ्ट में। काइंड्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, कितने तरह के काइंड्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल नोटिस है, प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है जब लोग केस फाइल करते हैं तो, कंप्लेंट्स है, इस तरह के सारे हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लीगल ड्राफ्टिंग पे। नाउ स्टार्ट करता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नोमेनक्लेचर। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप बना रहे हैं आप उसका नाम जरूर रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्क्रीन में दिख रहा है क्या? देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ, यस सर, यस सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्रीमेंट फॉर सेल, दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। आप ये नाम जरूर लिखिएगा। किसी भी जो भी टॉपिक पे आप बना रहे हैं, लीज पे बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे बना रहे हैं, या रेंट में बना रहे हैं, या सेल पे बना रहे हैं, तो इस तरह का हेडिंग्स बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। उसके बाद आप देखिएगा कि उसके नीचे डेट्स लिखे जाते हैं कि कब ये बना। ये एक लाइन, डेट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक। उसके बाद जो आता है वो है डिटेल्स ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं इस पे एक दो स्टोरीज बताऊंगा आपको डिटेल्स ऑफ पार्टीज में, कि जब आप एक लीगल ड्राफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पे होता है। लीगल ड्राफ्टिंग में होता क्या है कि जब एक क्लाइंट एक लॉयर को बोलता है कि आप मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि पार्टीज का नाम कौन होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मेरे साथ जो एक इवेंट हुआ था, मैं उसका स्टोरी का जिक्र कर रहा हूँ। एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर 3 डिसमिल एक जमीन है, उसका एक बनाना है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल, और उसको आप बना दीजिए।
तो जब फैक्ट्स फाइंडिंग हम उससे करते हैं क्लाइंट से, तो देखिए क्या क्या होता है। पहले क्लाइंट बोला कि आप एक्स के नाम पे आप बना दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, और एक उसका नाम होगा, एक क्लाइंट का नाम होगा, एक एक्स का नाम होगा। तो जब मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग क्लाइंट पे फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं या तो डॉक्यूमेंट से या तो क्लाइंट से क्वेश्चन करके, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा कि भैया आप बताइए कि पहले जमीन का हिस्ट्री क्या है। उस जमीन का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस हिस्ट्री से पता चला कि एक आदमी था जिसका वो जमीन है वो डेथ हो चुका है, और ये जो आदमी जिसके नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये उसका बड़ा बेटा है। तो मैंने पूछा ठीक है, उसके और भी तो बेटे हो सकते हैं या बेटी हो सकती है। तो उसने बोला हाँ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, जब और भी लोग बेटे और बेटी है तो फिर इसके नाम से क्यों बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, एक आदमी के नाम से? अगर एक आदमी के नाम से बनेगा तो बाद में ही तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। तो फिर और भी सवाल किया, तो सवाल करने से ये पता चला कि जो जो डेथ किया था, जिसकी ये प्रॉपर्टी थी, उसकी एक वाइफ भी है। तो टोटल यहाँ पे हो गए 4 लोग। अब बात ये है कि अगर मैं क्लाइंट की बात को मानता और उसके बताए हुए नाम को लिख के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता तो इनकम्प्लीट होता। इसी पॉइंट पे डिटेल्स ऑफ द पार्टीज में वो एक आदमी का नाम बता रहा था, जबकि इस सिचुएशन में 4 लोग थे। तो 4 का नाम से फिर उस एग्रीमेंट को कंप्लीट किया गया। तो ये डिटेल्स ऑफ द पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी को छोड़ नहीं सकते अगर उस प्रॉपर्टी में उसका राइट्स है। तो दूसरा एक और स्टोरी है इसी टाइप का, ये और इंटरेस्टिंग है। एक क्लाइंट बोले कि ठीक है बना देना है, इसी तरह का एक जमीन का मैटर था। तो जब मैंने पूछा कि ठीक है आप जमीन के डिटेल्स और पार्टीज का नाम बताइए, तो उसने बोला कि इसके नाम से बनाना है, एक्स के नाम से बनाना है। तो मैंने पूछा ठीक है, एक्स को कैसे मिला जमीन? तो उसने कहा कि इसके फादर डेथ कर गए थे और ये जो है ये सन अडॉप्टेड है। तो मैंने कहा ठीक है, अडॉप्टेड है तो अडॉप्शन का डीड दो। तो बोला नहीं है। फिर और बात हुई तो पता चला अडॉप्शन हुआ ही नहीं था, पता चला गिफ्ट किया गया था। तो मैंने कहा ठीक है गिफ्ट डीड दो। तो फिर पता चला कि गिफ्ट तो हुआ लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। तो जब आप किसी वो जो क्लाइंट जब किसी का नाम बोलता है पार्टीज का, तो आप यूं ही कॉन्ट्रैक्ट लीगल ड्राफ्ट मत कर दीजिएगा जब तक कि आप उसके पीछे का बैकग्राउंड को ना समझ लें, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा तो क्लाइंट जो है वो हमेशा लॉयर्स को ही ब्लेम दे देगा, वो अपना ब्लेम नहीं लेगा। इसलिए एज अ लॉयर आपका काम है कि फैक्ट फाइंडिंग करें क्लाइंट से। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़कर फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं और दूसरा क्लाइंट से क्वेश्चन करके। तो इस स्टोरी में क्या हुआ कि अडॉप्शन भी नहीं था, गिफ्ट भी नहीं था। तो फिर पता चला कि जिस आदमी का ये प्रॉपर्टी है वो डेथ हुआ, वो इशूलेस था, उसका कोई औलाद नहीं थे, तो उसका एक भाई था। तो अब भाई के नाम से एग्रीमेंट बना। तो इस तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये जो थर्ड पॉइंट है डिटेल्स ऑफ पार्टीज, डिटेल्स ऑफ पार्टीज विद, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ऊपर स्क्रीन के ऊपर लाइए, रिसाइटल्स के ऊपर, हाँ रिसाइटल के, हाँ ये डिटेल्स ऑफ पार्टीज, हाँ ये जो पॉइंट है ना डिटेल्स ऑफ पार्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल ड्राफ्ट में। और इसको आप कैसे कीजिएगा, अभी क्योंकि आधार आ गया है तो आधार, आप आधार नंबर जरूर लिखिएगा, आधार नंबर, ताकि उसकी आइडेंटिटी एकदम स्पेसिफाई हो जाए। सर ठीक है, यस सर ये गिफ्ट और अडॉप्शन में क्या डिफरेंस होता है? मतलब एक सवाल है क्वेश्चन सर, सेशन आंसर में हम लोग करेंगे ना, इसको पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्या थोड़ा सेशन कंप्लीट करना है। ओके तो डिटेल्स ऑफ पार्टीज, यहाँ पे आप लोग समझिए कि पार्टीज का नाम लिखना किसी कॉन्ट्रैक्ट में कितना इंपॉर्टेंट है, और लिखने से पहले अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता है तो आप हमेशा गलत कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। ये जो 4th नंबर है वो है रिसाइटल्स। रिसाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है इसमें, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी वादा में आप करेंगे तो इसको देखिएगा। जब भी स्टार्ट होता है रिसाइटल्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, देखिएगा वेराज लिखा होता है, देखिए वहां पे वेराज लिखा हुआ है, मैंने बोल्ड कर दिया है वेराज। तो वेराज करके वो पैरा शुरू होता है। उस पैरा में लिखा क्या जाता है रिसाइटल्स में? रिसाइटल्स में एक्चुअली लिखा जाता है हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का हिस्ट्री क्या है, किसको कहां से मिला, कब मिला। जब 2 पार्टी मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर, किसने किसको ऑफर दिया, वो वाला बात लिखा जाता है वेराज करके। मोटिव, और फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है मोटिव। ये आज ये कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है, ये एग्रीमेंट जो बन रहा है, ये हम लोग जो ड्राफ्ट कर रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट, ये क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द मोटिव, वो भी बात लिखा जाता है।
इसमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। सपोज कि कोई प्रॉपर्टी 1940 से लेके अभी 2021 तक आ रही है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखिएगा। ऑर्डर को इधर उधर नहीं करना है, क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे, ताकि किसके प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हुआ, इस तरह से आप जब लिखिएगा तो रिसाइटल से गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा जब भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो और दूसरी बात, ये रिसाइटल ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, सिंपल 3 4 5 पैराग्राफ्स के रहते हैं। एग्जांपल में दिखा रहा हूं, देखिए वेराज वेराज करके 3 4 5 रहते हैं, दिख रहा है? यस सर, यस सर। वेराज वेराज करके लिखा जाता है इसको, रिसाइटल्स। नाउ नेक्स्ट पोर्शन जो है वो स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर में जो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं वो है टेस्टमन, टेस्टेटम बोलिए या कॉवेनेंट्स बोलिए या विटनेसिंग क्लॉज बोलिए। जनरली इसको हम लोग नॉर्मल जार्गन में क्लॉजेस क्लॉजेस कहते हैं। तो ये क्लॉजेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसी पे सबसे ज्यादा ड्राफ्टिंग का जो स्किल है वो यहाँ पता चलता है किसी भी ड्राफ्टर का। इस क्लॉजेस में क्या होता है? ओके, हेलो, हेलो सर। हाँ, वो कुछ आ जा रहा है येलो कलर का, कुछ मार्किंग हो गया पूरा। सर पानी किसी से हुआ होगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं पढ़ रहा हूँ। तो वैसे भी ये तो शेयर हो जाएगा सबके साथ नोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो लोग देख लेंगे। तो ये ओके जो सर। विटनेसिंग क्लॉज जो है वो विटनेसिंग क्लॉज शुरू होता है किसके बाद? रिसाइटल्स के बाद। देखिए इस तरह से, नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज, ये वाला पार्ट दिख रहा है? दिखा यस ये सर, यस पार्ट? सर, यस ये सर, वाला यस पार्ट। सर। अब यहाँ से हाँ जो सर। शुरू होता है ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इसी को हम लोग क्लॉजेस 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 कहते हैं। और इसको ड्राफ्ट करने का एक तरीका जो है वो ये है कि आप गूगल पे जाइए, क्लॉज का नाम लिखिए और वो क्लॉज को वहां से लाइए, अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और लिख लीजिए। अवेलेबल है, आपको क्लॉजेस ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बेसिक्स क्लॉजेस है वो क्या क्या है वो इसमें मैंने लिख दिया है। सबसे पहला कंसिडरेशन, दूसरा टाइम, तीसरा मोड ऑफ पेमेंट, कैसे आप पेमेंट करेंगे, कंपनसेशन, टर्मिनेशन कि आप कैसे टर्मिनेट कीजिएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, रिन्यूअल, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, फोर्स मेज्योर, ये बहुत क्योंकि कोविड-19 हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट में, कि फोर्स मेज्योर का आप क्लॉज देखिएगा कि आप अचानक कुछ हो गया, वॉर हो गया या कोविड-19 हो गया, तो कोई भी इंसान अपना जो वादा किया है कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो कर नहीं पाएगा, तो उस जगह में फोर्स मेजर का डिफेंस ले सकता है वो। एक है टाइटल डिफेक्ट, जिसको मैं अभी डील करूंगा तो उसको और अच्छे से बताऊंगा टाइटल डिफेक्ट्स को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें मैं फोकस रहता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज हो सकता है। मिटिगेटिंग रिस्क, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप है और रिस्क वहां पे कुछ नजर आ रहा है, तो उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, अगर अगला पार्टी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, उसका एक क्लॉज। ये एक एडीआर का क्लॉज, आर्बिट्रेशन का, ये बहुत आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाइए तो आप आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दीजिए, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके बाद एक है सेवरेबिलिटी, ये एक अलग फिलॉसफी है सेवरेबिलिटी का। इस पे क्या है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कोई पॉइंट वॉइड हो जाए या वॉइडेबल हो जाए तो उसके वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। ये आप सेवरेबिलिटी क्लॉज आप लिख कर उसको बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट में और एक पॉइंट मान लीजिए वॉइड हो गया, तो क्या बाकी के 9 पॉइंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट और टोटली खत्म हो जाएंगे? नहीं, अगर ये क्लॉज आप लिख दीजिएगा तो नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा कि ये क्लॉज एकदम लिखिए जरूर सेवरेबिलिटी का। उसके बाद एक वेवर का है, वेवर कॉन्ट्रैक्ट, वेवर क्लॉज। वेवर क्लॉज आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इनकम्बरेंसेस का है कि इस प्रॉपर्टी में कोई तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है, पहले से कोई लीगल इश्यूज नहीं है, उसी को इनकम्बरेंसेस हम लोग क्लॉज डाल देते हैं। एक पोजीशन का है, एक जो लास्ट पॉइंट है वो पोजीशन का भी क्लॉज आप डाल सकते हैं कि आपको पोजीशन अभी मिला है या बाद में मिलेगा या कब मिलेगा, पेमेंट के बाद मिलेगा, ये एक पॉइंट। तो इन सब क्लॉजेस को अगर आप अच्छे से सजाना सीख जाएंगे तो आप एक का कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको मैं एक तरह से कहता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब आप लीगल ड्राफ्ट करते हैं तो ये एक मोती का हार की तरह है।
एक एक क्लॉज एक मोती है। अगर आप मोती को अच्छे से सजाएंगे तो वो एक बहुत अच्छा हार बनेगा। दैट इज कॉल्ड क्लॉजेस। तो मोती को मैं क्लॉजेस कहता हूं। तो अगर अच्छे से आप सजाइएगा तो अच्छे से होगा। नाउ टाइटल डिफेक्ट, ये जो क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोल्ड करके मैंने रखा है यहाँ पे, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास तौर से हम लोग का यहाँ, हम लोग झारखंड में, रांची में, यहाँ ज्यादातर मैटर लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड रहता है। तो लैंड डिस्प्यूट्स में ये हम लोगों का एक जरूरी हो जाता है कि टाइटल डिफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। टाइटल डिफेक्ट क्लॉज क्या होता है? टाइटल डिफेक्ट क्लॉज ये है कि अगर मान लीजिए ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप वो जमीन बेच रहे हैं, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जमीन बेचेगा, लेकिन अगर बी हमारा क्लाइंट है तो हमारे क्लाइंट की तरफ से हम लोगों को ये देखना है कि कहीं ए कुछ गलती तो नहीं कर रहा, या कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, या मिसरिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो वो टाइटल क्लॉज में हम लोग एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और उस टाइटल क्लॉज में क्या होगा कि उस पे हो सकता है कि हम लोग उसमें पेनल्टी लगा दें। अक्सर ऐसा होता है कि हमें डर रहता है कि ऑपोजिट पार्टी जो सेल आउट कर रहा है, हो सकता है कि वो बेच तो रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारा क्लाइंट है, जो पैसा उसको दे चुका है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एंट्री कर रहा है, वो क्या करे? तो क्या वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिखें या ना लिखें? एक सेकंड जरा सा होल्ड। ओके, तो ये जो टाइटल क्लॉज, ये जो टाइटल डिफेक्ट का क्लॉज है, उसको मैं बताना चाहता हूं कि जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए मान लीजिए कि उसका टाइटल है ही नहीं, तब क्या होगा? तो हमें ये टाइटल डिफेक्ट का क्लॉज देना ही होगा अपने क्लाइंट की तरफ से, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बच सके, उसकी जो पैसे है वो बच सके। तो टाइटल डिफेक्ट को दो तरीके से आप समझ सकते हैं। वो बॉक्स में देखिएगा, एक पेटेंट डिफेक्ट है, एक लेटेंट डिफेक्ट है। पेटेंट डिफेक्ट में क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज आ रही तो आ रही है। पेटेंट डिफेक्ट ये, पेटेंट डिफेक्ट में ये है कि जो चीज विजिबल टू आई है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में हम देख के समझ सकते हैं कि ये डिफेक्ट है, ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा। तो एज अ लॉयर हम लोगों का काम है कि वो डिफेक्ट्स को देखें, पेटेंट डिफेक्ट को। अगर पेटेंट डिफेक्ट आप देख रहे हैं और फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान है। और उसमें क्योंकि कैवेट एम्पटर एक जो फिलॉसफी है, वो कैवेट एम्पटर ये है कि बायर बी वेयर, खरीदार वो जो है वो बच के चले। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और बोले कि बेच दो, अचानक मतलब खरीद लो, तो आप पैसा उस पर लगा दे, ऐसा नहीं करें। आपका काम का ड्यूटी है कि आप एक देख कर समझ कर उस चीज को चेक कर कर तो आप उसको आगे बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट करें। तो पेटेंट डिफेक्ट्स आपको डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा उससे ही पता चल जाएगा। दूसरा है कि लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट में क्या होता है? एक सेकंड, ओके। तो लेटेंट डिफेक्ट जो है वो शुरुआती दौर पे आपको पता नहीं चलता, जब आप ड्राफ्ट करते हो तो नॉट विजिबल टू आई, नहीं पता चल पाता। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी का डेथ हुआ, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बच्चे पे हो रही है, और उसमें से एक आदमी आता है और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, आप इसको परचेज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि इस प्रॉपर्टी में और भी लोग शेयर होल्डर्स हैं, तो वहां पे लेटेंट डिफेक्ट्स आ सकता है। आपको नहीं पता चला, एज अ बायर आप नहीं देख पाते हैं। तो जो चीज आप डॉक्यूमेंट्स में नहीं पता कर सकते और कहीं से भी पता नहीं कर सकते, आप कोशिश भी किए पता करने का लेकिन नहीं पता हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट इफेक्ट। उस जगह में कैविएट एम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होगा। आप वहां पे डिफेंस ले सकते थे कि मुझे पता नहीं था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज होगा कोर्ट में तब। तो लेटेंट इफेक्ट में कुछ आप बच सकते हैं, लेकिन पेटेंट इफेक्ट में आपका नुकसान ही नुकसान है। तो आप जब भी एज अ लीगल आप ड्राफ्ट कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो डिफेक्ट्स, जो उसका टाइटल का जो डिफेक्ट है, वो पेटेंट है या लेटेंट है। अगर पेटेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही मत कीजिए। लेटेंट आपको तो पता ही नहीं चला, आप कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, बाद में आप उसको
बच सकते हैं उसमें। तो जब ये क्लॉजेस आप पूरी कंप्लीट कर और ये लेंगे, स्टेटस को कैसे लेते हैं हेलो सर? इससे कॉग्निजेंस कैसे लेंगे, कौन सा लेटेंट है कौन सा पेटेंट है, मतलब अगर बहुत थिन लाइन हो तो? क्या आप बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। सर एक पेटेंट डिफेक्ट और लेटेंट डिफेक्ट के बीच का कॉग्निजेंस लेने का क्या क्वेश्चन आंसर मतलब? हम लोग लास्ट सेशन में करेंगे, पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अच्छा इसको। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो पेटेंट और लेटेंट ये समझ में आ गया। ये टाइटल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। एक केस में बता रहा हूँ पर्सनल, कि एक क्लाइंट था और वो जब परचेज करने के लिए एक प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा था, तो मुझसे डिस्कशन किया। तो डिस्कशन में किया तो मैंने कहा ठीक है मैं उसको एग्रीमेंट बना देता हूँ। जब मैं बना रहा था तो जब मैं का जो बिहेवियर था, तो ऑपोजिट पार्टी का जो बिहेवियर था, मुझे कुछ शक हुआ। तो मैंने सोचा नहीं, इनको टाइटल डिफेक्ट का क्लॉज एकदम देना जरूरी है, और उसको उसमें डैमेजेस जो नुकसान होगा उसका पेनल्टी लगाना जरूरी है। तो मैंने 5 टाइम्स लिख दिया था उसको, जो एडवांस अमाउंट था उसका 5 टाइम्स कर दिया था, कि अगर इफ इन केस अगर टाइटल डिफेक्ट पाया जाता है इन फ्यूचर, देन दी सेलर विल गिव द 5 टाइम्स ऑफ द अर्नेस्ट मनी। तो ये एक पेनल्टी मैंने उसमें क्लॉज डाल दिया था, जिसका बहुत सारा वो लोग गुस्सा भी हो गया था। मैंने कहा बस जरूरी है, क्योंकि बिहेवियर से पता चलता है कुछ चीजों का, अपने क्लाइंट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो क्लॉज डालना जरूरी था। सर आपको किस वे में पता चला, मतलब कुछ तो हिंट दिया होगा सर आपके साथ जिसने एग्रीमेंट करवाया था, मतलब क्वेश्चन आंसर लास्ट में चलेगा, क्वेश्चन आंसर लास्ट में। ओके सर। तो उसके बाद जब आप ये क्लॉजेस को अच्छे से आप सजाना सीख जाएंगे, क्लॉजेस को आप बहुत इजी, मैं एक तरीका से बता रहा हूँ कि अगर ये कंप्यूटर में जो स्क्रीन खुला हुआ है, इसमें अगर गूगल खुल सकता है, तो क्या आप खोल दीजिएगा ब्राउजर, एक ऊपर में हाँ टैब खोलिए ना, हाँ एक टैब खोलिए, एक नया टैब, हाँ नया टैब। सही हो रहा है। नेट कनेक्ट है ना इस कंप्यूटर पे? नहीं खुल रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्लॉजेस को आप गूगल पे जाके आप सर्च कर, सर क्लॉजेस जो है वो आप गूगल से जाके आप टाइप करके, बस क्लॉज का नाम आपको पता होना चाहिए, और आप वहां से, आपको बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लॉजेस भरे पड़े हैं, आप खाली नाम टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हो सकता है टाइटल डिफेक्ट का नाम मिले, ये तो कस्टमाइज वर्जन था तो बाकी सब जगह मिल जाएगा, फोर्स मेजोर का मिल जाएगा, रिन्यूअल का मिल जाएगा, टर्मिनेशन का मिल जाएगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा सर। तो जब आपका क्लॉजेस कंप्लीट हो जाता है, तो क्लॉजेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट क्लोजिंग ऑफ द डीड आता है। क्लोजिंग ऑफ द डीड, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिमोनियम। और वो देखिए उसमें लिखते हैं हम लोग, इन विटनेसेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हेयर एंड टू सेट देयर रेस्पेक्टिव हैंड्स एंड सील्स द डे एंड ईयर बिफोर अ ईयर फर्स्ट अबव मेंशन्ड। देखिए इस तरह से आता है, यहाँ पे लिखा था इन विटनेसेस वेयर ऑफ, इन विटनेसेस वेयर ऑफ, दिख रहा है ना? यस सर। इन विटनेसेस वेयर ऑफ। तो आप इन विटनेसेस वेयर ऑफ के बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दो दिया है। एक सेकंड वाला है, इन विटनेसेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइंड दिस डीड ऑन डेट फर्स्ट अबव रिटन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक, हाँ, जब वो साइन करने का जब पार्ट आता है, वहां पे लास्ट पार्ट, ये विटनेसेस वेयर ऑफ लिखने के बाद, तो इसमें आप ड्राफ्ट का एक टेक्निक खेल सकते हैं, जो मैं खेलता हूँ। वो ये है कि मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स का ऑप्शन दे देता हूँ,
देखिए ये दिख रहा है फोटोग्राफ्स के ऑप्शन, हाँ सर दिख रहा। दिख रहा है यहाँ विटनेसेस क्या है। इसको और भी अपनी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। एक में मैंने विटनेसेस के लिए बॉक्सेस बना दिए थे ताकि उसमें ज्यादा विटनेसेस थे, मतलब 5+ विटनेसेस थे, तो इसलिए उसमें मुझे क्या कर, उनका भी यूआईडी लेना था। तो यहाँ पे तो विटनेसेस का यूआईडी नहीं लिखा मैंने, लेकिन उसमें क्या किया मैंने, विटनेसेस के यूआईडी, उनका फोन नंबर, एड्रेस वेड्रेस सब, उसका एक अलग सा बॉक्स बना दिया था मैंने। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा टाइट बनाना है और बहुत तो आप अपने हिसाब से इस पोर्शन को आप फोटो लगवा सकते हैं, विटनेसेस का ही फोटो लगवा सकते हैं। तो आपके हिसाब से कि आप किससे डील कर रहे हैं, किस तरह से आप किस एनवायरनमेंट में हैं, तो अगर जितना अच्छा आप बनाइएगा उतना अच्छा है, उससे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं परचेजर और सेलर का दोनों फोटो ले लेता हूँ, ताकि फोटो रहेगा तो और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाएगा। और ऊपर में जब पार्टीज का नाम रहता है वहाँ यूआईडी लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग ऑफ डीड। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसको थोड़ा सा रिवीजन मार देते हैं शॉर्टकट का। आप ऊपर ले, ये नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं, एक लास्ट पार्ट रिवाइज कर देते हैं, ये कम क्लोज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। नोमेनक्लेचर होगा पहला, यानी कि नाम होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आप जिस बना रहे हैं, सेल एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट या जो भी। दूसरा डेट ऑफ एग्रीमेंट्स होगा, पार्टीज का नाम और आधार होगा। उसके बाद रिसाइटल्स होगा, इसमें फोकस रखिएगा कि रिसाइटल हिस्ट्री जो होगा प्रॉपर्टी का वो अच्छे से लिखा जाए, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। तीसरा जो कोवेनेंट्स विटनेसिंग क्लॉजेस है, ये क्लॉजेस आप अच्छे से सजाना सीख लें, जस्ट लाइक अ मोती, हार की मोती जो होती है, अच्छे से सजाना सीख लें। डिफेक्ट्स पे आप एकदम फोकस रहिएगा। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर लैंड प्रॉपर्टी पे डील कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो टाइटल डिफेक्ट्स एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें बहुत फोकस रहिएगा, पेटेंट और लेटेंट दोनों पे। तीसरा जो विटनेसेस वेयर ऑफ, ये तो सिंपल है, इसको कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज और फोटोज ऑफ द पार्टीज आप ले सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो विटनेसेस के लिए भी आप आधार कार्ड और नंबर और फोटोज ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट का लीगल ड्राफ्टिंग, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का लीगल ड्राफ्टिंग। अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग जब केस फाइल सूट करते हैं, वो भी एक लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर आता है, वी कॉल इट प्लीडिंग्स। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स क्या है? सीपीसी आप लोग के पास होगा, आप लोग लेके आए हैं सीपीसी। प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स इसमें दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ मैं बता रहा हूं। पहले प्लीडिंग को समझ लेते हैं। व्हाट इज प्लीडिंग? ऑर्डर 6 रूल 1 में लिखा हुआ है, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट वो जब हम लोग केस को फाइल करते हैं तो वो प्लेंटिफ की तरफ से होता है, उसका जो जवाब देता है वो रिटन स्टेटमेंट है, ऑपोजिट पार्टी डिफेंडेंट। तो दोनों को प्लीडिंग्स कहा गया है, प्लेंट को भी कहा गया, रिटन स्टेटमेंट को ही कहा गया। लेकिन जो दोनों में लिखने का जो तरीका है और जो दिक्कतें आती है उसमें मैं वो बताऊंगा। The fundamental rule of pleading is contained in the provision of Order 6 Rule 2 of CPC. जब आप Order 6 Rule 2 पढ़ेंगे तो उसमें फंडामेंटल चीजें बता दी गई हैं कि प्लीडिंग में आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है कि shall contain concise material facts, मटेरियल फैक्ट्स ही होना चाहिए। जैसे एक शेर था कि इधर उधर की बात ना करिए, बता के काफिला क्यों लूटा। तो आप जब प्लेंट को आप ड्राफ्ट कीजिएगा तो इधर उधर की बात मत कीजिएगा। जो मटेरियल फैक्ट है, वो मटेरियल फैक्ट का डेफिनेशन क्या है वो पता चलेगा अभी आगे चल के। कि मटेरियल फैक्ट्स है जिससे कि आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वो फैक्ट्स को आपको अच्छे से लिखना है। पहला रूल तो यही है, कंटेन मटेरियल फैक्ट्स, स्टेटमेंट में वही होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सेकेंड पॉइंट ये है कि शैल बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स। आप जब प्लेंट बना रहे हैं तो पैराग्राफ्स में बनाइए, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और ईच एलिगेशंस को सेपरेट पैराग्राफ में लिखिए। मतलब 2 एलिगेशंस अगर है तो दोनों को एक पैराग्राफ में मत लिखिए, एक एलिगेशंस को एक पैराग्राफ में कंप्लीट, फिर मटेरियल फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा को दूसरे पैराग्राफ में लिखिएगा। तो डिस्टिंक्ट रखिएगा पैराग्राफ को, ताकि पढ़ने में आसान हो और प्लीडिंग्स का ये जो प्लेंट का जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत क्लियर हो और अच्छा हो। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम डेट्स भी लिखते हैं, उसमें कुछ अमाउंट भी लिखते हैं, सम लिखते हैं, पैसे की बात होती है, नंबर्स भी लिखते हैं कुछ। तो शैल बी इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। जैसे कि मान लीजिए किसी ने लिखा 10,000 रुपीज, तो 10,000 1 0, उसके बाद 3 0, तो उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा 10,000 वर्ड्स में।
तो ये ज्यादा बेहतर होगा। द प्लीडिंग शैल कंटेन मटेरियल फैक्ट्स ओनली, पहला। दूसरा, नॉट लॉ, लॉ बताने की जरूरत नहीं है। जब हम प्लेंट फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं, तो हमें मटेरियल फैक्ट्स ही बताना है ओनली, लॉ बताने की जरूरत नहीं है। नॉट एविडेंस, एविडेंस भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो फैक्ट कैसे प्रूफ होगा। अक्सर ये हो जाता है कि हम लोग ड्राफ्ट करने के समय क्या करते हैं कि जो फैक्ट्स हम बताते हैं उसको फैक्ट्स को प्रूफ करने का एविडेंस भी बताते हैं, तो वो एक लूज ड्राफ्टिंग हो जाता है इस ऑर्डर 6 रूल 2 के हिसाब से। हमें सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताना है, वो कैसे प्रूफ होगा वो कोर्ट का मैटर है, एविडेंस हमको नहीं बताना कि वो कैसे प्रूफ होगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो पर्टिकुलर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर्स। मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर्स क्या है। इस पे कुछ केस लॉज है। पहला केस लॉज ये है कि मटेरियल फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन नॉट अवर्ड इन द प्लेंट सूट मस्ट फेल। अगर आपने मटेरियल फैक्ट्स अच्छे से नहीं लिखा जिससे आपका कॉज ऑफ एक्शन है, तो आपका सूट वहीं फेल हो जाएगा, यानी कि मेरा प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो फेल हो जाएगा उसी जगह में। तो कौन सा है ये केस लॉ है, रेफरेंस है AIR का है। नेक्स्ट कीजिए। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि मटेरियल फैक्ट्स और पर्टिकुलर्स पे जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शंस है, वो इस केस में बताया गया है। There is a distinction between material facts and particulars. The words material facts show that the facts necessary to formulate complete cause of action. Cause of action को बनाने के लिए facts का जरूरी है, that is called material facts. Omission of a single material fact leads to incomplete cause of action. अगर एक material fact आपने lose कर दिया या omit कर दिया, तो वो cause of action को बना ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से हमारा suit क्या होगा, वो fail हो जाएगा। The statement of the plaintiff is bad बन जाएगा वो। द फंक्शन, सेकंड पार्ट जो है वो पर्टिकुलर्स पे है। द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर क्या होता है, ये आपका रूल 4 में है पर्टिकुलर्स। द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स इज टू प्रेजेंट अ फुल पिक्चर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का फुल पिक्चर बताने के लिए पर्टिकुलर्स बताना जरूरी है, ठीक है। विथ सच फर्दर इंफॉर्मेशन विच इन डिटेल सो एज टू मेक द ऑपोजिट पार्टी अंडरस्टैंड द केस ही विल हैव टू मीट। यानी कि जो हम प्लेंट फाइल करेंगे वो कॉपी तो ऑपोजिट पार्टी को भी जाएगा, तो हमने मटेरियल फैक्ट्स लिखा और उसको और एलाबोरेट कर दिया, तो वो पर्टिकुलर्स हो गया, जिससे ये पता चला कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ताकि ऑपोजिट पार्टी वो समझ सके कि क्या है केस, उसके खिलाफ क्या केस हुआ है। सेकेंड जो केस लॉ है वो ये है कि इन केस ऑफ मटेरियल फैक्ट्स डिफेक्ट, अगर मटेरियल फैक्ट्स में डिफेक्ट है, मतलब हमारे जो ड्राफ्ट हम कर रहे हैं, हम जो प्लेंट हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, मटेरियल फैक्ट्स पे ही डिफेक्ट हो गया, तो पिटीशन हैज टू बी रिजेक्टेड एट द आउटसेट, शुरू में ही उसको रिजेक्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिफेक्ट ऑफ मटेरियल पर्टिकुलर्स, अगर पर्टिकुलर्स में कुछ डिफेक्ट है, इट कैन बी क्योर्ड, उसको क्योर किया जा सकता है सब्सिक्वेंटली। बट वेयर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि पर्टिकुलर्स को भी आप क्योर कर लीजिए, तब भी आप नहीं करते हैं, तब क्या होगा, द पिटिशनर फेल्स टू क्योर द डिफेक्ट, पिटिशन हैज टू बी रिजेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लीगल ड्राफ्टर, जब आप केस का ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर में जो 4 पॉइंट्स है, ऊपर कीजिए जरा, अगर मान लीजिए सर, ऊपर आइए, अगर मान लीजिए कहीं पर मिस्टेक हो गया ड्राफ्टिंग करने के बाद और केस एडमिट हो गया, तो इस सूरत में हमारे पास क्या क्योर है? अमेंडमेंट का है ना ऑप्शन, अमेंडमेंट का है ऑप्शन, वो बताएंगे अभी आगे चल के। पहले हम बता रहे हैं कि हम फर्स्ट गो में अच्छा ड्राफ्ट, लीगल ड्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल फैक्ट एंड पर्टिकुलर्स, और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, इनको ड्राफ्ट करने का हमें पता होना चाहिए तरीका। नेक्स्ट, तो ये फंडामेंटल्स पता चल गया। अब हम लोग प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो कुछ चीजें समझ लें। प्लेंट में 4 चीजें एसेंशियल्स है, पार्टीज, प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड रिलीफ्स क्लेम्ड। सबसे पहला पार्टीज में क्या आएंगे, प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट, जिसमें हम लोग को ऑर्डर 1 रूल 1 to 13 में दिया गया है सारे रूल्स, उसको पढ़ लीजिएगा। इसको बिना पढ़े हम पार्टीज में होता क्या है कि दिक्कत हो जाती है, प्लेंट हमारा जो
ड्राफ्ट है वो बहुत वीक हो जाता है कि क्योंकि हम लोग ऑर्डर 1 रूल पढ़ते ही नहीं है 1 से 13 तक। तो इसको पार्टीज के बारे में, प्लेंट में जो पार्टीज है जो इन्वॉल्व है उसके बारे में जो ऑर्डर्स 1 रूल जो लिखा हुआ है उसको समझना जरूरी है। इसको पढ़ के ही ड्राफ्ट करना ज्यादा बेहतर होता है, तभी अच्छा ड्राफ्ट हो पाएगा। इसमें क्या होता क्या है, क्वेश्चन क्या आ जाता है इसमें, अक्सर होता है क्या है कि जिसको पार्टी बनाना था, जैसे मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में कहा था ना कि जिसको पार्टी बनाना था अगर उसको नहीं बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट बाद में दिक्कत होगा, उसी तरह के यहाँ पे भी है कि अगर प्लेंट में किसी को पार्टी बनाना है और आप नहीं बना रहे, नॉन ज्वाइंटर, अगर वो नेसेसरी पार्टी है तो आपका सूट कहीं भी नहीं टिकेगा क्योंकि वो नेसेसरी पार्टी है। तो उस चीज को समझना जरूरी है। तो करना क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका नेसेसरी पार्टी छूट गया तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर गलती से छूट गया तो एप्लीकेशन अंडर रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द सीपीसी फॉर एडिंग द नेसेसरी पार्टी, उसको ऐड करने के लिए हम ये कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पार्टी का डेथ, मतलब कुछ पार्टी का जो भी हम प्लेंट में रहता है हमारा, प्लेंटी या डिफेंडेंट दोनों में से किसी का भी, उनका डेथ हो जाता है ऑन डेथ ऑफ द पार्टी, तब क्या करें, तो हमें एप्लीकेशन देना होगा क्विकली, इसमें टाइम लिमिट है, क्विकली आप दे सकते हैं ऑर्डर 22 रूल 3 में सीपीसी फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ऊपर वाला एडिंग ऑफ नेसेसरी पार्टी था, नीचे सब्स्टिट्यूशन था कि उनका डेथ हो गया तो उनके जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तीसरा, ऑब्जेक्शन टू द नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर ऑर्डर 1 रूल 13, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। shall be taken at the earliest opportunity and as such objection not taken shall be deemed to have been waived। ये एक वेव का जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने ऊपर कहा था कि 3 प्रिंसिपल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टॉपल, वेव एंड एक्विजिशंस। अगर आप किसी चीज में साइलेंट हो जाते हैं तो वो 3 में से कोई एक यूज हो जाएगा प्रिंसिपल्स, फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम रहे उस वक्त आप अपने बात को रख सके ड्राफ्ट के जरिए। अगर आपने कुछ बात छोड़ दी तो फिर बाद में आप क्लेम नहीं कर पाते, वेव प्रिंसिपल ऑफ वेव लग जाता है उसमें, किसी जगह में प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लग जाएगा, किसी जगह में प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशंस लग जाएगा। एक एक्विजिशंस का केस बता रहा हूं कि एक ए ने बी को सामान बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया और जो टाइम डेट फिक्स किया था कि ये सामान पहुंचना चाहिए, तो क्या हुआ, ए ने 16 दिन के बाद शिप में उसको रखा और वो शिप कई दिन डिले हो गया और सामान वहां पहुंचा ही नहीं बी के पास। तो क्या हुआ कि फिर जब केस हुआ तो उसमें बी का तो नुकसान हो गया क्योंकि टाइम पे पहुंचा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था। तो ए ने क्या प्ली लिया, देखिए ए ने बोला कि जब ये सब हो रहा था तो बी को पता था, जब ये सब हो रहा था तो बी को पता था, तो वहां पर वो एक्विजिशंस का प्रिंसिपल यूज करके वो अपना जो कंपनसेशन अमाउंट को वो कम करवा लिया और वो कंपनसेशन अमाउंट जैसे आपने 50-50 कर दिया, दोनों को जो लॉस वो 50-50 कर दिया। तो ये जो एक्विजिशंस, ये सब जो प्रिंसिपल है एस्टॉपल, वेवर और एक्विजिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको बिना पढ़े सिविल में, खास तौर से सिविल में, मतलब क्रिमिनल में तो एस्टॉपल लगेगा नहीं, तो सिविल में अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं सिविल लॉ में, सिविल प्रॉपर्टी डीलिंग में, मतलब प्रॉपर्टीज केसेस में, तो आपको बहुत जरूरी है कि इन लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको अप्लाई कैसे करना है, तभी आप एक अच्छा लीगल ड्राफ्ट कर सकिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपको अगर ये प्रिंसिपल पता नहीं है और आप डॉक्यूमेंट्स में लिखते चले गए तो आपको ये भी नहीं पता लगा कि एस्टॉपल कब लगा, वेवर कब लगा, एक्विजिशंस कब लगा, और बाद में जब केस डिस्प्यूट होगा तो आपको पता चले कि आप केस हार गए। तो ये 3 जो प्रिंसिपल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लीगल ड्राफ्ट में। नाउ नेक्स्ट, कॉज ऑफ एक्शन, जो 4 एसेंशियल पॉइंट्स है पार्टीज कॉज ऑफ एक्शन, सेकंड एलिमेंट है प्लेंट का। जब आप प्लेंट ड्राफ्ट करिए, पार्टीज का नाम सब कुछ सही हो गया, अब आप कॉज ऑफ एक्शन लिख रहे हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या मींस द कॉज और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विद लीस्ट। यहाँ पे रांची में बहुत कहावत है, आखिर ऐसी क्या बात हुई, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने केस कर दिया। तो केस करने की वजह क्या थी, कॉज ऑफ एक्शन क्या था, वो एक अच्छे से अगर आप ड्राफ्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर डेफिनेशन ऑफ
इसका केस कॉज ऑफ एक्शन का अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो ये केस लॉ है AIR 2012 SC 3912। ये आप केस लॉस पढ़िएगा तो आपको कॉज ऑफ एक्शन का एक डेफिनेशन मिल जाएगा। जिनके पास बेयर एक्ट होगा वो बेयर एक्ट में दिया हुआ है, वो उसमें दिया हुआ है, आप देखिएगा उसमें तो मिल जाएगा आपको। सर ये तो कहावत रांची में नहीं सर, सभी जगह अप्लाई होती है सर, कई कई जगह पर तो बहुत ज्यादा है। सही है। खैर हम लोग तो यहाँ पे तो वही बात, हमको लगा कि कहीं और नहीं होता होगा। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने केस कर दिया? तो कॉज ऑफ एक्शन पे बहुत ज्यादा अच्छे से आप ड्राफ्ट कीजिएगा। कॉज ऑफ एक्शन पे इधर उधर गलती ना, ऊपर जो बात होता है मटेरियल फैक्ट्स का, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन आपका टिका हुआ है मटेरियल फैक्ट्स पे। अगर आपका मटेरियल फैक्ट्स अच्छा है तो कॉज ऑफ एक्शन आप अच्छे से ड्राफ्ट कीजिएगा। अगर मटेरियल फैक्ट्स गलत हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन गलत होगा और आपका सूट वहीं डिसमिस। Every plaint must disclose the cause of action. If it does not, it is the duty of the court to reject the plaint. कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑर्डर 7 रूल 11। तुरंत अगर आप कॉज ऑफ एक्शन आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो आपका प्लेंट वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 में। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 आप जब देखिएगा सीपीसी में, मुझे उम्मीद है कि कोई लोग सीपीसी नहीं लेके आया होगा, कई लोग नहीं लाए। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो जिसके पास सीपी है वो लोग देख सकते हैं इसको। तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका कहाँ से प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रूल्स को पढ़ के जब आप ड्राफ्ट करने बैठिएगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे गलती नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि हम लोग सही से पढ़ के तैयार नहीं रहते हैं और ड्राफ्ट करने से पहले ही बस यूं ही फैक्ट्स को लिख देते हैं फैक्ट्स को। अब पता चलता है जब केस वहां गया तो रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का पता नहीं था कि क्यों हुआ, क्योंकि रूल 11 पढ़ा नहीं हम लोग। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर। कोई भी केस होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट मैटर होता है, टॉपिक होता है, मुद्दा जिसको हम लोग कहते हैं। अब वो मुद्दा इसलिए बताना जरूरी होता है, उससे कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन पता चलता है। अगर प्रॉपर्टी यहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली का कोर्ट जाएगा, यहाँ आप केस नहीं करिएगा। तो ये ज्यूरिडिक्शन को समझने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर को समझना बहुत जरूरी है। तो आप सब्जेक्ट मैटर को समझ के ही ड्राफ्ट कीजिएगा। इसमें क्या लिखता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, सैन कोंगनान, इसके बिना तो ज्यूरिडिक्शन होगा ही नहीं, कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता। विदाउट ज्यूरिडिक्शन ऑन द सब्जेक्ट मैटर द कोर्ट शैल बी इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई द कॉज। वो ट्राई नहीं कर सकता, वहां पे वो जजमेंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं यहाँ का, उनके कोर्ट का। तो जब सब्जेक्ट मैटर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यूरिडिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिसाइड होता है। तो प्लेंट का हम लोगों ने 3 पार्ट सीखा। पहला पार्टीज, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, तीसरा सब्जेक्ट मैटर। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रेयर क्लॉज कहते हैं, रिलीफ क्लेम्ड कहते हैं, प्रेयर पार्ट कहते हैं, नीचे वाला ऑर्डर 7 रूल 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिविल एक्ट, खास तौर से सिविल वाले लोग, जो लोग सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, टाइम एंड एनर्जी, कि आप आखिर कोर्ट गए तो आपको कोर्ट से क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आधा अधूरा मांगा तो आधा अधूरा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो इस पे देखिए, समझिए, ये क्लेम आप जब करना चाहते हैं तो आप क्लियरली कीजिएगा, क्लियरली स्पेसिफाई द रिलीफ्स। रिलीफ शुड बी फाउंडेड ऑन प्लीडिंग, और आपका जो रिलीफ है वो प्लीडिंग में बेस्ड होना चाहिए। जो ऊपर आपने पूरा मटेरियल फैक्ट्स लिखा, आपने कॉज ऑफ एक्शन लिखा, आपने सब्जेक्ट मैटर लिखा, उन सारे बातों पे बेस्ड होना चाहिए रिलीफ। जब आप प्रेयर को आप टाइप कर रहे हैं, तो मतलब आप लिख रहे हैं, प्रेयर को ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो और जब भी मांगिएगा फुल रिलीफ मांगिएगा। हो सकता है उससे ज्यादा मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम मत मांगिएगा रिलीफ में। क्योंकि इस पे क्या है बात देखिए, द कोर्ट कैन नॉट ग्रांट अ लार्जर रिलीफ टू द प्लेंटिफ। आपने अगर 100 रुपए मांगा रिलीफ में, तो कोर्ट आपको 200 नहीं देगा, वो 100 ही देगा। लेकिन अगर आपने 200 मांगा तो कोर्ट आपको 100 दे सकता है। नेक्स्ट पार्ट में लिखा, वंस द लार्जर रिलीफ शॉर्ट फॉर अ लेसर रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पोर्शन है
कि मान लीजिए आपने 10 साल केस लड़ा, 5 साल केस लड़ा और आपने रिलीफ पोर्शन में ही सही से नहीं लिखा, तो फायदा क्या? एग्जाम्पल के तौर पे एक केस आपने किया, टाइटल सूट किया, आपने टाइटल के लिए केस किया, आपने प्लेंट फाइल कर दिया टाइटल के लिए, और उसमें आपने पोजीशन का प्रेयर ही नहीं दिया, तो क्या होगा? आपको टाइटल मिल जाएगा, ठीक है, टाइटल आपका रहेगा, लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फायदा क्या हुआ केस जीतने का? तो प्रेयर पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, सब चीज सोच के तभी ड्राफ्ट कीजिएगा इसको, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आपका वीक हो जाता है तो बाद में मतलब दिक्कत हो जाएगी आपको। जैसे टाइटल डिस्प्यूट में बोला ना कि टाइटल का आपने प्रेयर किया, पोजीशन का प्रेयर ही नहीं किया। नेक्स्ट, वो प्लेंट का पार्ट हो गया कि हमने सूट फाइल किया, प्लेंट, वो सारी बातें लिख दी। अब आता है बात कि ऑपोजिट पार्टी, इफ यू आर अ लॉयर फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, तो रिटन स्टेटमेंट फाइल होगा, वो ऑर्डर 8 में लिखा हुआ है। तो उस जगह में क्या क्या किया जाए? तो रिटन स्टेटमेंट का जब आप फाइल करने का, मान लीजिए केस हुआ, आपके क्लाइंट हैं, उन पर केस हो गया, ए ने किया, आप बी के साइड से हैं, तो 3 सिचुएशंस आ सकते हैं आपके पास। सबसे पहला कि जो भी प्लेंट में लिखा हुआ था, जो ए ने जो भी प्लेंट में लिखा, प्लेंटिफ ने जो भी लिखा, आप उसको एडमिट कर लीजिए, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि आप उसको एडमिट कर तो रहे हैं लेकिन उसका रीजन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा एडमिशन ऑफ द फैक्ट्स इन द प्लेंट, और दूसरा एडमिशन ऑफ फैक्ट्स बट अवॉइड इफेक्ट्स देयरऑफ बाय प्लीडिंग जस्टिफिकेशन। आप उसमें जस्टिफिकेशन देके अवॉइड करना चाह रहे हैं ताकि उस एडमिशन जो आप एडमिट कर रहे हैं बात को, उसका नुकसान ना हो जाए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिनायल ऑफ द फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। इस पे एक स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टोरी है, आज से 3-4 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था, वो भी लॉयर ही है, तो वो आया मेरे पास, तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है, तो ऐसा कुछ कर दो। मैंने कहा ठीक है, प्लेंट लेकर आओ। प्लेंट लेकर आया, हम लोग बैठे साथ में, और जितना भी पैराग्राफ था मैंने कहा चलो लिखो, डिनाई 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 डिनाई। तो जितना भी पैराग्राफ था, 15-20 पॉइंट जो भी थे पैराग्राफ में, एवरी पैराग्राफ को डिनाई डिनाई कंप्लीटली डिनाई 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 करके उसका प्लेंट रिटर्न बना के उसको फाइल कर दिया, वो खुश हो गया। तो ये एक टेक्निक है, डिनाई 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 डिनाई। याद रखिएगा, अगर आप अपोजिट में है, डिफेंडेंट की तरफ से हैं, तो फैक्ट्स को डिनाई करना आपका जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स आप डिनाई नहीं कर सकते, जैसे कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। अगर किसी का प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब वो रजिस्ट्री में नाम तो आ चुका है, तो आप उसको नहीं डिनाई कर सकते, वो डॉक्यूमेंटेड है, तो आप वहां पे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो जहां पे आप एडमिट का पोजीशन है कि आप उस फैक्ट्स को एडमिट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जस्टिफिकेशन लाना होगा ताकि आपका केस आपके तरफ आए, आपकी मजबूती हो, ना कि एडमिशन से अपोजिट का केस बन जाए, प्लेंटिफ का केस ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। तो उस जगह में जस्टिफिकेशन आपको लाना होगा, तरह तरह के जस्टिफिकेशन होते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक कैसे होगा कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ए ने बी को बेचा, वो तो रजिस्टर्ड हो गया, वो तो फैक्ट्स रजिस्टर्ड हो गया। अब क्या होगा बात, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको जस्टिफिकेशन ये दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो मैंने रजिस्टर कराया, लेकिन मैंने इसको पैसे दिए थे, इस तरीके से दिए थे, ये मेरा परचेजिंग प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा हक है, उसका नहीं हक है। तो इस तरह का जस्टिफिकेशन बहुत सारी चीजों में आपको सोचना होगा, आपके फैक्ट्स के हिसाब से जस्टिफिकेशन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप एडमिट करने के पोजीशन में ही आपको एडमिट करना ही पड़ेगा उस तरह की बातों में। जहां पे एडमिट करने का पोजीशन नहीं है, वहां पे आप डिनाई कीजिएगा क्लियरली। जब आप रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको डिनाई करना होगा। एडमिशन ऑफ फैक्ट्स इन अ प्लेंट, ये क्या है कि ऑर्डर 12 रूल 6, इसमें क्या होता है देखिए, एडमिशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। एडमिशन इंक्लूड्स one that can be inferred from facts and circumstances of the case without any dispute। अब एडमिशन कई तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यस बोलिएगा तो एडमिशन होगा, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो एडमिशन भी कल आ जाएगा उसमें। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्लेंट में, मतलब प्लेंटिफ ने कोई पॉइंट लिखा है, आपने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, डिनाई नहीं किया, तो वो फैक्ट प्लेंट में एडमिशन आपके लिए हो जाएगा, रिटन स्टेटमेंट में आपके लिए वो एडमिशन हो जाएगा।
और जब वो एडमिशन हो जाएगा तो देख लीजिए ऑर्डर 12 रूल 6 में क्या होगा, जजमेंट ही हो जाएगा। नेक्स्ट, एडमिशन, हाँ ऊपर 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 सेकंड वाला केस लॉ, एक ही केस लॉ पढ़े था। हाँ, पहला वाला केस लॉ गया कि एडमिशन इंक्लूड, सम वर्ड लिखा हुआ इंक्लूड दैट कैन बी इन्फर्ड हो जाएगा फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस विदाउट एनी डिस्प्यूट, जिस पे आपने कोई डिस्प्यूट नहीं किया वो वाला फैक्ट एडमिट हो जाएगा। दूसरा, एडमिशन मेड बाय अ पार्टी इन हिज प्लीडिंग इज एडमिसिबल अगेंस्ट हिम। अगर आपने प्लीडिंग पे ही एडमिशन कर दिया वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। मान लीजिए किसी ने प्लेंटिफ ने कोई पॉइंट लिखा, मैंने यहाँ रिटन स्टेटमेंट में उसको एडमिट कर लिया, तो वो ये एक है प्रोप्रियो विगोरे बाय इट्स ओन फोर्स, जिसका मीनिंग है वो अपने ही फोर्स से एडमिशन हो जाएगा। इस पे एक रियल लाइफ का केस बता रहा हूँ। एक केस में मैं था, तो हम लोगों ने फाइल किया, तो उधर से जो रिटन स्टेटमेंट आया एक पैराग्राफ में ऑपोजिट साइड से उन्होंने कुछ एडमिट कर लिया। अब जब रिटन स्टेटमेंट का हम लोगों ने जब रेप्लिकेशन दिया तो उसी फैक्ट्स को एडमिशन क्योंकि हो गया, वो एडमिट कर लिया था, अब उसी फैक्ट से उसका पूरा केस कमजोर हो गया। अब वो सारा केस हमारी तरफ स्ट्रांग हो गया। सिर्फ एक लाइन एक पैराग्राफ में उन्होंने पूरा प्लेन मतलब रिटन स्टेटमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखा जिसमें कि ये एडमिट कर लिया था उन्होंने पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बस एक गलती उनका और उनका पूरा केस वीक हो गया। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हुआ है मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप जब रिटन स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, जब आप प्लेंट का जवाब दे रहे हैं, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन को समझ कर लिखिएगा। एडमिशन कई तरीके से हो सकता है, आप लिखिएगा तो एडमिट होगा, नहीं लिखिएगा मतलब उस पॉइंट को आप प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा तो भी एडमिट हो जाएगा, आप खामोश रहिएगा तो भी एडमिट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंसेप्ट को समझना, नहीं तो एडमिट अगर हो गया तो फिर आपके खिलाफ चला जाएगा। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। ये एक ऐसा पॉइंट है दैट पार्टी कैन नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द सेम इंस्ट्रूमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिटन स्टेटमेंट या प्लेन भी फाइल जो भी कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये आप लिख सकते हैं कि सपोज दैट आप एक एग्रीमेंट है, आप उसको अपने एक पॉइंट के फायदे के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन एक पॉइंट के फायदे के लिए आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये लॉ ये कहता है कि आप एप्रोबेट और रिप्रोबेट एक साथ नहीं कर सकते। अक्सर बहुत सारे मैंने देखा है कि ये गलती होता है, ये ड्राफ्टिंग आपका वीक कर देता है। आप दोनों बात नहीं कर सकते। अगर आपने उसे अपने फायदे के लिए लिया है किसी एग्रीमेंट को, तो फिर अपने फायदे के लिए आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हुआ है। तो अगर एक पॉइंट में आप यस कर रहे हैं तो दूसरे पॉइंट में आप जाकर नो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द सेम इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इसका वीकनेस जो लोगों को नहीं पता है वो अक्सर ड्राफ्टिंग में गलती कर देते हैं ये वाला। अब ये जो एडमिशन की पार्ट हमने पढ़ा है इसका रेफरेंस आपको मिलेगा एविडेंस एक्ट में, जो कि पढ़ना जरूरी है ताकि आप एक अच्छा लीगल ड्राफ्टर बन सके प्लेंट बनाने में और रिटन स्टेटमेंट बनाने में, या कोई भी ऐसा कहीं पे भी कोई पिटीशन आप डालें तो ये एविडेंस मतलब आपको पता होना चाहिए कुछ रेफरेंस। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 58, एविडेंस एक्ट दिख रहा है? दिखा? नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, दिख गया। एविडेंस एक्ट, तो इसका जो सेक्शन 58 है वो क्या है? वो क्या लिखता है? फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने एडमिट कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट्स को समझ कर लिखना, मतलब लॉ भी जानना जरूरी है। ये मैं बताऊंगा कि लॉ और फैक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आपने सुना मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में सुना शेक्सपियर? सर अभी सुना है, अभी सुना है। अभी सुना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द यूनिक स्टोरी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं उसको किए हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश सब में अवेलेबल है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में उसमें क्या होता है कि शाइलॉक एक रहता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ, एंटोनियो के साथ।
और उसमें एक क्लॉज लिखता है कि अगर तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश कट करूंगा तुम्हारे बॉडी पार्ट से। तो ये एक क्लॉज उसने लिखता है। तो इस क्लॉज से क्या होता है कि वो तो लिख देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि आप जो लिख रहे हैं उसका कानून क्या है, लॉ क्या है। फैक्ट आपने लिखा जरूर, और उस एंटोनियो वादा कर लेता है कि यस, तो वो फैक्ट आपने लिखा जरूर, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि लॉ कहाँ है, उस फैक्ट पे लॉ कैसे लागू हो रहा है। बाद में वो शाइलॉक फंस जाता है और उसका आधा पैसा वाला पूरे स्टोरी में आप जब देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी बता दूंगा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो वो आप देखिए कि वो जो इंसान उसका जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश को काटने की कोशिश करता है, उसका उल्टा कैसे हो जाता है उसके साथ, सिर्फ उसी लाइन पे जो वो लिखता है कि 1 पाउंड फ्लैश आप लेंगे, क्योंकि उसको लॉ नहीं पता होता है। अब वो बात वो लिख देता है फैक्ट्स को। तो लॉ जानना बहुत जरूरी है। किसी भी फैक्ट्स को आप जब लिख रहे हैं उसके पीछे का लॉ आप क्या असर कर रहा है उसको जानना जरूरी है, अगर आप एक अच्छे लीगल ड्राफ्टर बनना चाहते हैं। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का आप स्टोरी जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। फैक्ट और लॉ के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो उसका इम्प्लीकेशंस आते हैं, वो समझने के लिए आप ये स्टोरी जरूर पढ़िएगा। तो फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी, ये आपका सेक्शन 58 है, मैंने यहीं पे लिख दिया तो आप इसको पढ़ सकते हैं 58 को। नेक्स्ट है सेक्शन 17, एडमिशन डिफाइंड है उसमें। An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inferences to any fact irrelevant and which is made by any person under the circumstances inherent from. Comments. Admissibility in substantive evidence of the fact. Admissibility in substantive evidence of the fact admitted while a previous statement used to contradict a witness does not become substantive evidence, merely serves the purpose of throwing doubt on the veracity of the witness. ये सेक्शन 17 को भी आप जरूर पढ़िएगा। ये जब एडमिशंस पे लेके सारा कुछ है। तीसरा, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग और बाय एनी एजेंट और एनी पार्टी whom the court regards under circumstances case are expressly or impliedly authorized him to make them or admission. अगर एडमिशन उस पार्टी जो है वो एडमिट कर रहा है या उसका एजेंट एडमिट कर रहा है तो वो भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, पर्सन फ्रॉम whom it derived, जो भी उस सब्जेक्ट मैटर में जो पार्टी, अगर उसमें से भी किसी ने एडमिट कर लिया तो भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। नीचे है एडमिशन फैक्ट्स बट वॉइड इफेक्ट्स देयरऑफ बाय प्लीडिंग जस्टिफिकेशन। ये वाला तो बता दिया मैंने कि आप जस्टिफिकेशन से बच सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा फैक्ट्स है जो एडमिट हो चुका है तो उससे बचने के लिए आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। नेक्स्ट, ये एविडेंस एक्ट का वो था कॉपी पेस्ट, तो उसको आप एविडेंस एक्ट में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे डिनायल ऑफ फैक्ट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर 8 और ऑर्डर 8 का रूल 345, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रैवर्स। जो मैंने कहा था ना कि एक पिटीशन था डिनाई, ये उसी का बात कर रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रैवर्स कहते हैं। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रैवर्स? व्हेन अ डिफेंडेंट डिनाइज द फैक्ट्स एलिज्ड इन द प्लेंट, he is said to traverse. आपने डिनाई किया, ट्रैवर्स हो गया। तो उसको कैसे किया जाए, उसका 3 फंडामेंटल रूल है ट्रैवर्स का। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो दिक्कत कहां से आएगा। देखिए, पहला रूल क्या है? डिनायल टू बी स्पेसिफिक। आपको डिनाई करना है स्पेसिफिक, ये पॉइंट, ये फैक्ट एकदम डिनाई करता हूं। मतलब प्लेंटिफ ने ये पॉइंट जो लिखा, ये फैक्ट लिखा, ये द डिफेंडेंट कंप्लीटली डिनाइज, स्पेसिफिकली डिनाइज, एकदम डिनाई कर देना। ये बोलता है ऑर्डर 8 रूल 3, डिनायल मस्ट बी क्लियर, एक्सप्लिसिट एंड अनएम्बिगुअस। डबल मीनिंग नहीं आना चाहिए कि आप डिनाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, उस टाइप से कि डिनाई भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उस तरह का एम्बिगुअस सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो आप डिनाई कीजिएगा स्पेसिफिक। सेकंड रूल क्या कहता है? डिनायल शुड नॉट बी इवेसिव। इवेसिव मतलब कि अगर आप डिनाई कर रहे हैं किसी पार्ट को तो अच्छे से, मतलब इसको आप ऑर्डर 8 रूल 4 में पढ़िएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसका एग्जांपल भी है। ऑर्डर 8 रूल 4, जैसे कि क्लेम किया, प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि समथिंग 100 रुपए का क्लेम किया और उसमें आपने रिसीव किया कुछ अमाउंट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रिसीव नहीं किया।
अगर आपने कुछ रिसीव किया तो जितना रिसीव किया उतना बताइए, जितना नहीं किया उतना बताइए। इवेसिव टाइप का नहीं, डायरेक्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको उस तरह का फैक्ट्स को क्लियर करके बताना, डिनाई करना है। अगर आप कर रहे हैं तो क्लियरली आप डिनाई कर रहे हैं तो फैक्ट्स को समझाकर आपको डिनाई करना, इवेसिव टाइप का नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा जो पॉइंट है, ये आपका डिनायल को बार करता, रोकता है आपका, बार टू डिनायल एंजॉइंस। ये ऑर्डर 8 रूल 5, इसमें क्या बोला जाता है कि इफ नॉट डिनाइड बाय द डिफेंडेंट, अगर आपने डिनाई नहीं किया, देन इट शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड, तो उसको एडमिटेड माना जाएगा। जो मैंने पहले कहा था कि आपने किसी फैक्ट्स को प्लेंट में आपने डिनाई नहीं किया तो क्या होगा, उसको एडमिशन मान लिया जाएगा, एडमिशन मान लिया जाएगा, आपका ऑर्डर 12 में चला जाएगा वो। केस लॉस, डिफेंडेंट इन WS मतलब रिटन स्टेटमेंट मस्ट कैटेगोरिकली डिनाई और डिस्प्यूट अवर्मेंट्स मेड इन द प्लेंट। डिनाई कीजिए, डिस्प्यूट कीजिए, कैटेगोरिकली कीजिए जो प्लेंट में लिखा है प्लेंटिफ ने। एज एवेसिव डिनायल वुड अमाउंट टू एन एडमिशन, अगर आपने इवेसिव डिनायल किया तो उसको एडमिशन मान लिया जाएगा ऑफ द एलिगेशन मेड इन द प्लेंट। देखा, अगर आपने डिनाई नहीं किया उसको भी एडमिशन माना गया, अगर आपने इवेसिव डिनायल किया तो उसको भी एडमिशन मान लिया जाएगा वो सिचुएशन में। तो इसलिए जब आप डिनाई करते हैं तो जो फर्स्ट फंडामेंटल रूल है कि आप स्पेसिफिक डिनाई कीजिए, क्लियरली कीजिए, एक्सप्लिसिट कीजिए, अनएम्बिगुअस डिनाई कीजिए। ये केस लॉ है आपका 2017 का है। नेक्स्ट, फैक्ट्स और अवर्मेंट्स नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, अगर आपने स्पेसिफिकली नहीं किया डिनाई प्लेंट का अपने रिटन स्टेटमेंट में, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो इन्फरेंस to be drawn that the statement of the fact pleaded by the opposite party accepted, मतलब कि प्लेंट में जो बात लिखा गया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर आपने स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट कर रहे हैं एज ए लीगल ड्राफ्टर, आपके पास आपका क्लाइंट का इंटरेस्ट आपको बचाना है, आपको उसको केस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये रूल्स पते होने चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेवर्स पता होना चाहिए कि कैसे डिनाई करना है। अगर आपने डिनाई करने पे कुछ गलती कर दी तो वो फैक्ट उनके तरफ मतलब वो एडमिशन माना जाएगा, अब वो आपके केस को डैमेज कर सकता है। तीसरा केस जो है, इट इज सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट इफ एन एलिगेशन मेड इन द प्लेंट इज नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड इन द रिटन स्टेटमेंट, इट इज ट्रीटेड एज एडमिटेड। अगर आप फिर वही बात हो गया, सेम चीज है, सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है कि अगर आपने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, मान लीजिए आपने इवेसिव तौर पे किया या फिर आपने डिनाई ही नहीं किया अपने रिटन स्टेटमेंट में, तो उसको एडमिशन माना जाएगा, इट इज ट्रीटेड एज एडमिटेड। ये केस आपका 2016 का है। तो ये 3 केस लॉ है जिससे ये समझ हो रहा है कि अगर आप एडमिशन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप डिनाई नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। ये लीगल ऑब्जेक्शंस है जो कुछ तरीके का कुछ 11-12 पॉइंट्स है जो आप रिटन स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला आपको ये पॉइंट आप ले सकते हैं कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल फॉर वांट ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिस। मान लीजिए कि एक केस कर रहा है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को किया, लेकिन कुछ स्टैट्यूटरी नोटिस देने का एक रूल्स होता है कि केस करने से पहले उसको डिमांड नोटिस या कोई नोटिस देना रहता है। अगर उसने नहीं दिया और डायरेक्ट आके केस कर दिया, फाइल कर दिया, तो आप यही पॉइंट को उठा के उसके सूट को नॉट मेंटेनेबल कह के उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो आपको रिटन स्टेटमेंट में लिखना होगा ना ये बात। तो ये बात आप तब लिख सकिएगा जब आपको वो पता होगा कि स्टैट्यूटरी नोटिस के बारे में लॉ में लिखा हुआ है। अगर आपको ये लॉ पता ही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप नॉट मेंटेनेबल का ग्राउंड ही नहीं ले पाइएगा, है कि नहीं। प्लेंट सेकंड पॉइंट है कि प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। अब आप उस प्लेंटिफ की पूरे प्लेंट को आप पढ़िए, उसमें खोजिए कि कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। अगर आप कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा है या मटेरियल फैक्ट्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो आप पॉइंट को उठाकर आप रिटन स्टेटमेंट में लिख के आप ये बोल सकते हैं कि देखिए इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इट मस्ट बी रिजेक्टेड, मटेरियल फैक्ट्स नहीं है, इट मस्ट बी रिजेक्टेड, नॉट मेंटेनेबल। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने रिटन स्टेटमेंट में। तीसरा पॉइंट आप क्या ले सकते हैं, प्लेंटिफ हैज नो राइट टू सू, मतलब उसका कोई राइट ही नहीं है सू करने, मतलब केस करने का। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है फिर भी केस कर दिया, तो डिफेंडेंट ये बात बोल सकता है कि सर देखिए ये तो मालिक ही नहीं है, इसका तो राइट ही नहीं है केस करने का, तो आप उस पॉइंट को ले सकते हैं।
सूट बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। अब प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा पढ़ना जरूरी है इस पॉइंट को समझने के लिए। रेस जुडिकाटा की पहले ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है इस मैटर पे। ये देखिए प्लेंटिफ फिर से आया है केस करने के लिए, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इस पर लग रहा है। तो ऑलरेडी जो डिसाइड हो चुका है ये फिर से केस कर रहा था, इट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो आप रिटन स्टेटमेंट ये भी ग्राउंड ले सकते हैं अगर वो केस पहले डिसाइड हो चुका है तो। नेक्स्ट है सूट बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वेवर एंड एक्विजिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले भी कहा कि एस्टॉपल वेवर एक्विजिशंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। कि अगर मान लीजिए कि प्लेंट में उसने कुछ बात ऐसी लिख दी है जो उसके खिलाफ जाती है, या स्टॉप मतलब उसको स्टॉप आप उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, तो वहां पे स्टॉपल वेवर एक्विजिशंस का जैसे मैंने वो वाला बताया था ना जहाज में, कि वो इतने दिन के बाद गया जहाज तो वो लॉस हो गया उसको, तो लॉस हुआ तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट ने ये ग्राउंड लिया कि देखिए भाई साहब कि प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशंस लग चुका था, प्लेंटिफ को पता था कि क्या लॉस हो रहा है, फिर भी इसने कोई रीजनेबल अप्रोच नहीं लिया रिस्क को कम करने के लिए, तो क्या हुआ वो केस प्लेंटिफ को नुकसान हो गया, वहां पे उसका केस को डैमेज हो गया। तो ये प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है, स्टॉपल वेवर और एक्विजिशंस को तीनों, रेस जुडिकाटा भी। छठा पॉइंट जो है कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन। आप एक कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि केस तो फाइल कर देते हैं लोग लेकिन जुरिडिक्शन नहीं होता कोर्ट का, जो मैंने कहा था सब्जेक्ट मैटर वाला ऊपर में, सब्जेक्ट मैटर से जुरिडिक्शन डिसाइड होगा। तो अगर कोर्ट का जुरिडिक्शन है ही नहीं और वहां केस फाइल हो तो आप एक ही पॉइंट लिख सकते हैं कि कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है। 7 नंबर सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लिमिटेशन के बाद फाइल होते हैं, तो उस जगह में आप लिमिटेशन का डिफेंस ले सकते हैं। शूट इज बार्ड ऑर्डर 12 ऑर्डर 2 रूल 2। इसमें क्या होता है ये वाला मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए ए और बी के बीच में 100 रुपीज का डील हुआ, ठीक है, लेकिन ए ने क्या किया कि 70 रुपीज पे ही मामला रफा दफा कर लिया। जब पिछले बार केस हुआ तो 70 रुपीज पे केस खत्म हो गया। तो ए क्या सोचा कि अरे इस बार तो 70 रुपीज मिल गया, चलो फिर एक केस करते हैं 30 रुपीज का पार्ट क्लेम का। तो आप वहां पे बोल दीजिएगा देखिए आप बार्ड हैं ऑर्डर 2 रूल 2 से, आपने वहां पे जो क्लेम किया था वो आपको मिल चुका है, वहीं पे अब दोबारा उस क्लेम को आप उसी क्लेम को रिपीट नहीं कर सकते। तो रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम उसी में उसने छोड़ दिया, मतलब कहने का मतलब केस जब वो 70 रुपीज पे वो सेटल किया तो उस वक्त ही खत्म हो गया उसका क्लेम। अब वो क्लेम नहीं कर सकता, दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकता। तो आप ये वाला भी आप पॉइंट ले सकते हैं कि ऑर्डर 2 रूल 2 में ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सूट इज बैड फॉर मिस ज्वाइंटर और पार्टीज। अगर उसने केस फाइल किया है और पार्टी सही से नहीं बनाया है, मिस ज्वाइंटर कर दिया है, तो आप उसका भी डिफेंस ले सकते हैं कि देखिए इसमें एक पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, जो नेसेसरी पार्टी नहीं है, प्रॉपर पार्टी नहीं है, इस तरह का डिफेंस आप ले सकते हैं। 10 सूट इज प्री मेच्योर। सूट इज प्री मेच्योर मतलब कि अभी सिचुएशन ही नहीं आया है, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं हुआ है, आप सूट फाइल कर रहे हैं, तो आप उस जगह में डिफेंस ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप रिटन स्टेटमेंट फाइल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो रेज एवरी पॉसिबल फैक्ट्स जितना भी हो सके इन WS मतलब रिटन स्टेटमेंट टू शो दैट सूट इज नॉट मेंटेनेबल। ऑर्डर 8 रूल 2 आपको पास जितना पॉसिबल फैक्ट्स है आप इस साबित कर सकें कि प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो नॉट मेंटेनेबल है इन द आई ऑफ लॉ, आप वो हर फैक्ट्स को रेज कीजिए। अगर आप रेज करते हैं तो उनका केस वीक हो जाएगा, आपका केस मजबूत होगा। तो हर पॉसिबल फैक्ट्स को छोड़ना नहीं है कोई फैक्ट्स। अगर आपको फैक्ट्स को भी ऐसा है कि आपने छोड़ दिया तो फिर वो डिनायल एडमिशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो आप जितना भी पॉसिबल फैक्ट्स है जो उसके सूट को नॉन मेंटेनेबल बनाता है तो आप उसको रेज कीजिए WS में, रिटन स्टेटमेंट में, जब आप रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही है और आगे रचित देख लो विधि। क्रिमिनल का डिफेंस, क्रिमिनल का तो मैंने किया नहीं क्योंकि टाइम बचा नहीं था मेरे पास, दूसरी चीज में बिजी था तो इसको मैं बना नहीं पाया। तो क्रिमिनल वाला पार्ट 2 जब होगा इस वेबिनार का आर्ट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, तो क्रिमिनल वाला मैं कर दूंगा। किसमें सर?
सर जी बोलिए। मेरे को 2-3 डाउट्स थे सर। हाँ बोलिए। सर वो आपने जैसे कॉन्टेक्ट के अंदर बताया था ना कि अगर अपन हाँ किसी के मतलब केस वेस करते हैं तो उसमें एक तो आपने बोला था कि एक अडॉप्टेशन और एक गिफ्ट, जी, आपकी मतलब माइक से अगर आवाज क्लियर नहीं आ रहा एक है। अडॉप्ट, अब आ रही है सर क्लियर? हाँ, मतलब वाइब्रेट ज्यादा, आपका आवाज कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। सर हम कह रहे हैं कि आपने अभी थोड़ा टाइम अभी स्टार्टिंग में केस बताया था एक, तो हाँ उसके अंदर आपने बोला था कि अगर अपन किसी मतलब आपने बेसिकली एक चीज बोली थी कि अडॉप्टेशन और गिफ्ट, मतलब अगर कोई थर्ड अच्छा, पार्टी अडॉप्शन वाला, अडॉप्शन वाला। हाँ सर, हाँ जी सर। हाँ, अडॉप्शन में क्या है कि आप उसको बेटा बना रहे हैं ना, गिफ्ट में तो आप किसी को भी दे सकते हैं गिफ्ट। अच्छा प्रॉपर्टी ट्रांसफर वो तो आप उसको बेटा बना रहे हैं, जब वो बेटा बनेगा तब प्रॉपर्टी इनहेरिट होगा। जब वो बेटा बनेगा उसका, तब वो मान लीजिए जो ए है उसने जेड को अडॉप्ट किया, तो जब ए का डेथ होगा तब वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा? जेड के पास। ओके। लेकिन अगर क्या है कि अगर अडॉप्ट नहीं करता है, ए डायरेक्टली अभी जेड को गिफ्ट करके ट्रांसफर कर सकता है। दोनों का कंसेप्ट यही है। अच्छा, तो सर दोनों में डिफरेंस ये है कि आप मतलब अपन इसमें अडॉप्ट नहीं करके अपन उसको गिफ्ट के थ्रू में ले रहे हैं। तो गिफ्ट आप कीजिएगा तो आपकी जिंदगी में अभी ही खत्म हो जाएगा, फिर आपका प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। अच्छा, अपना प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हाँ नहीं, सर वो तो समझ उसके गए। पास चला जाएगा ना। हम्म। वो एलिमेंट्स है ना, वो गिफ्ट के एलिमेंट्स आप गूगल पर टाइप करके देख लीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट, क्या क्या चीज चाहिए। एक देने वाला, हाँ एक सर लेने वाला और एक पोजेशन, तीनों चीज चाहिए। पोजीशन। गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट लेने वाला और एक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पोजीशन। तो ये एलिमेंट्स आप देख लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन अडॉप्शन में तो ये सब चीज नहीं है। अडॉप्शन में तो हम उसको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसको मतलब अडॉप्शन में क्या होता है, ए ने बेटा बनाया मतलब जेड को, उसको, वो तो दूसरा बात हो गया। वहां से प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी तो बाद में आएगा उसमें। यहाँ गिफ्ट में क्या है, प्रॉपर्टी तो अभी आ गया। अच्छा सर समझ गए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, आपने हेलो। लास्ट पॉइंट बताया था। हेलो हाँ बोलिए। सर, लास्ट पॉइंट बताया था कि अपने एनी रेलेवेंट पॉइंट व्हिच स्टेट्स दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। हाँ, ऑर्डर 6 रूल 2 शायद। लास्ट वाला हाँ सर। ऑर्डर 8 रूल 2। हाँ सॉरी, ऑर्डर 8 रूल 2 सर। तो उसमें हम अगर ऐसा कोई पॉइंट हो जो कि थोड़ा आर्बिट्रेरी सा हो या फिर जो मतलब अनरीजनेबल हो, तो कोर्ट उसके खिलाफ कोई रिपरकशन लेवल कर सकती है क्या प्लेंटिफ के अगेंस्ट? हाँ, इन्फ्रेंस हमेशा हमेशा कोर्ट के पास ऑप्शन है इन्फ्रेंस का। मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा बात लिखी जो आप ही के खिलाफ है, तो क्या प्लेंटिफ का लॉयर नहीं उठाएगा ये पॉइंट नहीं उठाएगा? देखिए जैसा अब इन्होंने ये लिख दिया, तो तो उसका अगर वो कोई इन्फ्रेंस की तरफ से एडमिशन हो गया तो आपके लिए नुकसान है। इसलिए तो ड्राफ्टिंग करना इतना इजी तो है नहीं। जो हम लोग सिंपल समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना सीख गया तो ठीक है, लेकिन जब आप प्लेंट और डब्ल्यूएस में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है उसमें। तो ये आप जो बात लिखते हैं, बहुत सोचना पड़ता है उस बात को लिखने के लिए कि कहीं ये जाके घूम के कहीं एडमिशन की तरफ से चला नहीं गया, या फिर ये पॉइंट मेरे खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। तो इसलिए जो भी आप फैक्ट्स लिखिएगा उसके लिए बहुत समझ के लिखना होगा। ओके सर। अगर मान लीजिए आपको फैक्ट्स लिख दिया और एविडेंस भी नहीं है उस फैक्ट्स का, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। लीगल ड्राफ्टिंग से समझा दिया सर। सर एक बार लीगल ड्राफ्टिंग फिर से समझा दीजिए सर। पेज नंबर 1 सर। पेज नंबर 1 फर्स्ट। ये सर, ये तो फर्स्ट स्टार्टिंग पर छूट गया सर। अरे ये कोई एग्जाम पास करने वाला थोड़ी वेबिनार है, तो ऐसा ही है लीगल ड्राफ्टिंग। वो तो शुरू में इंट्रोडक्शन ऐसा ही हल्का फुल्का था। वो एक्चुअली मेन बताना था कि क्या पॉइंट्स लिखना है, क्या नहीं पॉइंट्स लिखना है। ये तो एग्जाम पॉइंट एग्रीमेंट था और क्या सब छूट गया सर। तो कोई बार फिर से आप रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रिकॉर्डिंग में है, आप देख लीजिएगा। अब रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी हो चुका है। एक पॉइंट को समझाना फिर से रिपीट करना बहुत दिक्कत है। तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगे आपके साथ।
ठीक है, सर बोलिए। सर हाँ बोलिए। sir, if a plaintiff doesn't have any proof of his possession of any property, any movable or immovable property, but the defendant has registered documents which are proving that the plaintiff has the possession. So if the plaintiff files a case, then it will be considered, and solely based on the defendant registered document proofs, can the plaintiff get the title or possession or whatever it may. ये एक इम्पोर्टेंट ये बात है इसमें कि जब आप केस फाइल करते हैं तो ऑपोजिट लॉयर भी आपकी तरफ आपका प्लेंट देख रहा है, तो वो अपनी गलती नहीं करेगा कि आपको सबूत दे देगा, लेकिन अगर वो करता है तो आपके फायदे के लिए है। एज अ लॉयर यही तो लीगल ड्राफ्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है। The defendant already has registered documents. So in the registered document itself, the possession of the plaintiff has been indirectly revealed. हाँ, तो so if the plaintiff has no other evidence, direct evidence from his part that he has got the property, but the defendant who is registered the documents by falsification, he has got the evidence that it was the plaintiff actually. So can the that plaintiff registered documents will be the solely admitted relying on the defendant? That registered documents will be considered as admitted fact. उसको तो आप the defendant cannot deny that fact, that because that document is registered, the plaintiff can take the advantage of this registered document. So solely based on that evidence, he can declare that he possessed the property without any other evidence from his side. Without if the defendant is the owner, is the what we say that is the owner, actual owner of the property. If there is a fraud and misrepresentation, that is a different matter. Then the property will not get transferred. If there is fraud, the plaintiff is the owner. If there is a fraud, like then there will be take no for transfer example, of property. if there is a fraud involved in any documents, then there is no transfer of property, transfer of title. There is no transfer of title. Then the original person will file the case and get the property. The plaintiff purchased the property, agricultural land in the court auction, and thereafter he delivered it to the lease to that person from whom he purchased the property. So actually what he did is that the plaintiff didn't go and didn't pay any land taxes, and the defendant paid land taxes and he sold it to some other person. And in that process, now they are denying that this person even didn't come to at all land. But while they have registered documents 3, and in those 3 registered documents, they have written, they have divided the land, they have written the facts, and also they have written totally different facts which they have submitted in the court while auction is happening. So based on this, the plaintiff can prove that he has divided the land, he came to the land and he has the possession of the land and title of the land, even at least for 1 year after this, before all these things happen. So that's what I am saying. Based on this, he can argue like that. Okay, you can give me the facts total in WhatsApp. I can give you the answer there, because I could not understand the question very clearly. Okay. Because the facts are so involved. So the lease is involved, the transfer of property is involved, the admission of facts is involved. So there are lots of things involved in this case. So I cannot answer in this in a very easy manner. So if you want to know an answer, you can send me the whole facts on the WhatsApp. I will answer you. Any more question? After completing this session, sir, I cannot say that we are master of legal drafting.
after completing this session, sir, I cannot say that we are now master in legal drafting. How can we improve better for this? वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही है. Okay, sir. Okay. I will speak once again, sir. You will write After com- write it down. Write it down on WhatsApp group. I will Okay. check there. Okay. Any more Okay, questions? sir. Okay, sir. Should we complete this session? Sir, is there any book where we will get all the formats of all different kinds of petitions? Okay, okay. Thanks for the reminding. Yeah, मैं भूल ही गया था. For civil drafting, small book you can get in any civil court or any law book store. This is the revenue drafting. In Ranchi we call it SDO code. So revenue drafting, civil drafting. This is better drafting by Justice B.K. Very retired judge, Odisha High Court. Better drafting. This book is from A. Majumdar. You can get A. Majumdar. Can you see that? Yes, sir. Okay. Okay. Now this another book is there. For drafting, you can refer to the civil Code of Civil Procedure. The annexure appendix part. Last में आप जाइएगा, appendix A है, B है, C है. You can get there. Example, suit for specific performance. Okay, sir. So in CPC you can get it. Order 6. Order 6, Rule 3. Forms of pleading. Can you see that? Yes, sir. Order 6 and Rule 3. Appendix A when applicable. आप Appendix A में जब लास्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें, आप एक जनरल आइडिया मिल जाएगा. We'll get the general idea. And for power of attorney, I got this power of attorney drafting. In the last part, there are 2-3 formats given: power of attorney to conduct a case and general power of attorney. Yes, sir. And power of attorney to deal with the property. Can you see that? Yes, sir. And general power of attorney to do all. These are the things that you can get on the BEAR Act. So I will send the bibliography of every book, name of every book, so that everyone can read those books. But the most important thing, if you want to become a good legal drafter, you need to read the law, study the law, and the law is law of equity and Transfer of Property Act. You must need to read these laws. And for corporate drafting and contract, I have this book. You can refer to this book. You will get every kind of Yes, sir. drafting, corporate drafting, contract and everything like that. But drafting is an art. You will learn with your experiences and the mistakes. You will learn with time. Any more question? No, sir. Okay. No, sir. Sir, could you make a session on criminal drafting as well? Yes, we should make a session in criminal drafting. मुझे टाइम नहीं मिला था एक्चुअली उसके नोट्स बनाने का, इसलिए मैंने उस पार्ट को छोड़ ही दिया.
क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का थोड़ा सा एक दो Sir, पॉइंट है। can you just give जो us बहुत the important है। books and can you give us the list of drafting books and orders of both civil and criminal, sir? Okay, okay. I will send in the WhatsApp group. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Super. ये विधि Okay, sir. Thank you, sir. वो फोटो सेशन कर लिया क्या लास्ट में सबका? Thank you, sir. Okay.